Hello everyone, welcome back. This is your host, Professor Naval Vikram from the Metabolic Research Group of Department of Medicine, All India Institute of Medical Sciences. So today we are going to discuss about a very, very important problem. That is the problem of obesity in our new generation, that is the children and the adolescents. Now this is becoming a huge problem. So to discuss this with us, we have an eminent expert. We have with us Dr. Rajni Sharma. Namaskar. Good afternoon, everyone. Dr. Rajni Sharma is additional professor in the Pediatric Endocrinology Division of Department of Pediatrics at the All India Institute of Medical Sciences. So welcome, Dr. Rajni. So let me straight away begin with the first question. Obesity is becoming a problem in the whole population. Now, what is the status of obesity in children and adolescents? तो बच्चों में मोटापे का क्या स्तर है इस समय हमारी इंडियन पॉपुलेशन में? तो जैसे कि आपने मेंशन किया, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रही है. बच्चों में भी ये बहुत कॉमन हो गई है. लगभग 30 साल पहले मे बी जो लेवल था ओबेसिटी का या मोटापे का, इट वाज ओनली 1 in 25 children was overweight or obese. But now, talking of 30 years later, as of today, almost 20% of the children, that is 1 out of 4 or 5 children, are obese or overweight. So the level has risen quite remarkably in the last few years. And if we come to the causes of obesity, then as we all know, in the previous generation or in the previous era, we were all consuming homemade food, and it was a nutritious diet consisting of whole wheat and whatever was available in the house. And we had little access to bahar ka jo khana, like the outside restaurant food. But nowadays, as we know, the availability of junk food, the food which is also known as HFSS, that is high fat, sugar and salt food. These foods are almost available all over almost every market and even next to the house. So children go and readily buy this food stuff. And these junk foods contain very little nutrition, and they fill their stomach with this food. And as a result, they lead to obesity. And at the same time, they're not eating nutritious food. So, also the availability of online apps to order food. So as we saw in the COVID pandemic, people were ordering food from outside. So there has been a great change in our dietary habits. And all these factors have contributed to the change in the eating pattern and gain of weight, not only of adults, but also children. Then coming to the second cause, that is the lack of exercise, physical activity. Like previously, we were very physically active. We were walking to the workplace, children were walking to school. Lekin aajkal they become very sedentary. One reason for that is also the increased use of mobile, the screen time. Previously, they had their classes online due to the COVID pandemic, but now they've started going to the school. However, that mobile addiction, which was developed at that time, is still persisting. So we see children on the mobile phones or on video games, screen time of almost like prolonged 6 to 7 hours per day, which is a long time to sit. In higher classes, they sit for prolonged time, basically to study. And so all this lack of physical activity is leading to, again, increased weight gain. Because as we know, weight gain is a balance between what we take and what is our exercise or our physical activity. So these are the main causes which are leading to exogenous obesity, and in children as well. Sometimes there are some endocrine causes or some hormonal dysfunction, and these can be recognized by a clinical examination, but the parents can be alerted if the child is not growing well. That means in spite of gaining weight, his height is not increasing, or he has some developmental problem, or the child is perhaps snoring at night excessively with daytime somnolence, he's sleeping too much in the day. All these factors will point to a hormonal imbalance, which the doctor can diagnose on seeing the patient. So often we come across people referring to as slightly chubby children as a child is very healthy. Yeah, ये healthy बच्चा है.
तो ये कैसे पता चले, ये कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चा वाकई में हेल्दी है या ये बच्चा मोटापे से ग्रस्त है, या दिस चाइल्ड इज हेल्दी और दिस चाइल्ड इज ओबीस? हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? Yeah, so basically, people they have this myth that chubby is healthy. Actually, chubby is not healthy, as we'll discuss later, that it leads to a lot of physical problems as well and health problems. So the first thing is how to identify whether the child is actually healthy. That healthy means a normal weight, or he is overweight or obese. So as you would have discussed in your earlier videos, there's an index called body mass index, which indicates the level of fatness in the body. So we calculate this by taking the weight in kg and divide it by the height in meter square. And there are various charts available, the Indian Academy of Pediatric charts, in which the level of overweight, which is just the beginning of the child becoming fat, and the level of obesity, in which the child is now excessively fat. So those levels can be determined by looking at those charts. So for the parent, they can refer to these charts, which we will share the link to, and they can see whether the child is overweight or obese. As soon as the child starts becoming overweight, you should start taking all precautions. And in obese, you should consult the doctor as soon as possible. And as far as a small measure is concerned, you can check the waist circumference of the child at home. That is, you can check the circumference of the waist around the navel area. And if this measured in centimeters, if it's more than half of the height of the child, then the child is obese, and you can know that the child is gaining weight. That is very useful information. So I think the people, you can just you go through the charts, which would be the link for which would be provided, and by that you can identify whether the child is overweight or obese or normal weight. Now, once we have identified that this child is obese, then how do we manage obesity in children? Because here is the child is still growing, has not attained full potential of growth, but still has obesity. So this is a kind of, I feel, a tricky situation, unlike that seen in adults. So बढ़ते बच्चों में मोटापे को कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में आप बताइए। सर, आप सही कह रहे हैं, बिकॉज बच्चे बढ़ने की एज में हैं, हम उनका डाइट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हम उनका खाना पीना बंद कर दें, जैसे बड़ों में यू हैव फैट डाइट, ऐसा कुछ मतलब जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज नॉट डन इन चिल्ड्रन. दे आर टोल्ड टू हैव अ हेल्दी डाइट विच इज इन द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो उनको चाहिए एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड फॉर स्टडीइंग एंड फॉर देयर गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटी. दे नीड ऑल दैट एनर्जी. तो वो सब तो नॉर्मल डाइट में रहेगा, बट सम सर्टेन प्रिकॉशंस हैव टू बी फॉलोड. Like we give, whenever we start, जब भी हमको कुछ एडवाइस देते हैं, it's always family based advice, कि मतलब पूरी फैमिली को ये फॉलो करना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे के ऊपर ये को हेल्दी खाना है, पूरी फैमिली को एक हेल्दी मील पैटर्न फॉलो करना है. उनको खाना तभी खाना है जब मील टाइम हो. आइडियली तो प्रेफरेबली ये है कि बच्चे फैमिली पूरा एक साथ बैठ के मील एंजॉय करे, और एटलीस्ट एक टाइम का खाना एक साथ बैठ के खाए. एंड उसमें जो भी घर का खाना होता है, रोटी, दाल, सब्जी, कर्ड, सैलेड, ये सब डाइट का पार्ट होता है. एंड रेगुलर मील्स हो. उसके अलावा द फैमिली, उसको एडवाइस किया जाता है कि हाउ टू, द चाइल्ड शुड, व्हेन द चाइल्ड इज ईटिंग, उसको माइंडफुली खाना है. माइंडफुली मतलब बिना डिस्ट्रैक्शंस के, कि ये नहीं कि बच्चा मोबाइल देख रहा है खाते हुए, या वो टीवी देख रहा है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि कितना वो खाना खा रहा है, और इनडाइजेशन भी हो सकता है. तो एक जगह बैठ के आराम से खाना खाना है. एंड मेन बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है वो है, उनको बहुत भूख लगती है, स्पेशली जब वो खेल के आते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें स्नैक्स जो होते हैं, सो मोस्टली क्या होता है कि स्नैक्स बहुत ही अनहेल्दी टाइप के होते हैं, लाइक पैकेज फूड हो गया या कहीं से ऑर्डर कर लिया. तो वी हैव टू इंश्योर कि जो स्नैक्स है वो बहुत ही हेल्दी टाइप के हों. बेसिकली मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ स्नैक के, लाइक दे शुड बी फ्रेश फ्रूट, लाइक नट्स, or some kind of salads can be given. A roti wrap can be given with whatever vegetable जो भी घर पे बना हुआ है, or we can give them peanuts or some kind of a fruit curd, जैसे मिक्सचर होता है, या फ्रूट स्मूदी. तो the mother या जो पेरेंट्स हैं, उनको ऐसा कुछ डिवाइस करना है कि अपने बच्चे की क्या स्नैक्स रहेंगे, उसको प्लान करना पड़ेगा ठीक से. नहीं तो क्या होगा कि बच्चे को भूख लगेगी एंड तुरंत
वो कोई भी जंक फूड खाने के लिए रेडी रहेगा। घर में जंक फूड रखना ही नहीं है। और टोटली जो होता है जो कोलास होते हैं, स्वीट जूसेस होते हैं, उनको अवॉइड करना है। जूस की जगह बेटर है कि हम फ्रूट दें बच्चे को। तो एक तो ये डाइट को लेके हो गया। फिर सेकंड होता है फिजिकल एक्टिविटी। तो बच्चे को जहां तक हो सके जो स्क्रीन टाइम है, दैट मीन्स द लेजर स्क्रीन टाइम, जो वो एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन देख रहा है, दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 2 आवर्स पर डे। उससे ज्यादा उसको कोई वीडियो गेम कोई नहीं करना है, अपर लिमिट है ये। एंड फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है बाहर जाके, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1 आवर पर डे। दीज आर द गाइडलाइंस जो हम उनको रेकमेंड करते हैं। और अगर ये फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे का वेट जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, और जैसे जैसे उसकी हाइट निकलेगी तो उसका लेवल ऑफ फैटनेस कम हो जाएगा। तो यही हम रेकमेंड करते हैं ओवरऑल बच्चों को। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है कि डाइट और लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज, खासतौर से बढ़ते बच्चों में किस तरह से डाइट का ध्यान रखना चाहिए, ये एक बहुत ही जरूरी इस मतलब बैलेंस रखना चाहिए। तो और कई बार ये जैसे एडल्ट्स में हम देखते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं दवाइयों में या कुछ सर्जरी में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेडिसिन या दवाइयों का और बेरियाट्रिक सर्जरी जो का बच्चों में क्या रोल है, क्या ये यूज किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस कंडीशन या किस सिचुएशन में? जहां तक दवाइयों या फिर सर्जरी का सवाल है, बेरियाट्रिक सर्जरी, तो ये बहुत ही रेयरली हम यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी रहता है कि बच्चा को लाइफस्टाइल, पूरी फैमिली को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज से जहां तक हो सके कंट्रोल करें। और कम से कम इसका हम 6 मंथ तक तो ट्रायल देते ही हैं कि वो अपनी डाइट चेंज करें, अपने को एक्सरसाइज करें और वेट को स्थिर में लाएं। बट अगर वेट बहुत ही ज्यादा है, लाइक बॉडी मास इंडेक्स जैसे 40 से ज्यादा है या फिर 35 से ज्यादा है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बच्चे को डायबिटीज हो गया या उसको कोई और स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो गई, हाइपरटेंशन, ऐसे मतलब अगर कोई उसको दिक्कत हो गई, तो फिर उस कंडीशन में हम सर्जरी के लिए कभी कभी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जनरली ये जो मेडिसिन हैं ये 12 वर्ष के बाद ही अप्रूव्ड है, उससे यंग एज में हम नहीं यूज करते। और या फिर हम सर्जरी के लिए जा सकते हैं, बट ये सिचुएशंस बहुत ही रेयरली अराइज करती हैं। फर्स्ट हमारा यही होता है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको चेंज करें। ओके, तो डॉक्टर रजनी, आपने हमें इतनी जानकारी चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में या बच्चों में मोटापे के बारे में दी है, तो आप लास्ट में कुछ फैमिलीज के लिए आप एक कुछ संदेश देना चाहेंगी जिसको लोग फॉलो कर सकें? तो जहां तक मोटापा बढ़ रहा है, तो ये अगर हम बच्चे को शुरू से ही, जैसे बच्चा 1 साल से कम है, तभी हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि मोटापा बढ़े ही ना बच्चे में। बिकॉज एक बार मोटापा हो जाता है तो उसको ट्रीट करना, उसको उसके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, थोड़ा सा बहुत एफर्ट लगता है उसमें। तो हमें चाहिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तभी हमें कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। लाइक तो उसकी डाइट पे काफी ध्यान देना चाहिए कि घर का खाना ही जहां तक हो सके फीडिंग दी जाए। और बच्चे को कभी भी ओवर फीड नहीं करना चाहिए। लाइक हमारे इंडियन उसमें ट्रेडिशन है कि मदर को बच्चे को खिलाना है, ज्यादा खिलाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर अपने आप कितना उसको खाना चाहिए, उसके क्या हंगर कितना है, उसका पता नहीं चलता बच्चे को, जिसे हम कहते हैं सेटाइटी। तो बच्चे को पता नहीं चलता कि वो कब फुल हो गया और कब उसको खाना बंद करना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे को कभी भी ओवर फीड नहीं करें। जब बच्चा भूखा है तभी उसको खाना दे। बेटर है कि उसको कोई भी ऐसे शुगर का जो मात्रा है कम रखे फूड में। अगर बहुत ज्यादा उसको चीनी वाली चीजें देंगे तो उसको शुगर का हो जाएगा, मतलब आदत हो जाएगी शुगर की। सो बेटर कि हम उसको कोई भी शुगर वाली चीजें ना दें। और 2 इयर्स तक तो नो स्क्रीन टाइम, दैट मीन्स स्क्रीन एकदम नहीं देखने हैं बच्चे को, वीडियो गेम, टीवी, ये सब एकदम अवॉइड करना है। वंस द चाइल्ड इज अबव 2 इयर्स तो उसका अगेन उसके खाने का ध्यान रखना है कि जंक फूड हमें नहीं देना है। जहां तक हो सके जो फूड है इट शुड नेवर बी यूज्ड एज अ रिवॉर्ड या पनिशमेंट, कि आज बच्चे ने ऐसा किया तो कल आज बाहर का खाना खिलाते हैं रिवॉर्ड के रूप में, या आज उसने कुछ गलत किया तो उसको हम पनिशमेंट के लिए चॉकलेट ना दें या ऐसे कुछ, मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट की तरह यूज नहीं करना है।
ये तो बच्चे उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं, और कभी कभी स्ट्रेस और बोर्डम में भी बच्चे फिर ये सब खाने लग जाते हैं जंक फूड। तो वो एक हेल्दी हमें एक बैलेंस रखना है, और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ध्यान देना है कि कम से कम बच्चा जो है 1 to 2 आवर्स डेली खेले यंग एज से ही। इवन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लाइक दे आर ओल्डर एज ग्रुप एंड दे हैव टू स्टडी, उनको बैठना है पढ़ने के लिए काफी देर तक, बट अगर वो बाहर जाके 1 घंटा भी खेले या एक्सरसाइज करें तो उससे भी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है एंड उससे पढ़ाई में भी मदद मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में पूरा ही एक्सरसाइज छोड़ दिया या डाइट पे ध्यान नहीं दिया। सो दीज आर सम ऑफ द मैसेजेस I'd like to give. So, Dr. Rajni, it was a very informative discussion about childhood obesity that we have had, and हमारे सुनने वाले जो जुड़े हुए हैं वो आई एम श्योर कि ये जानकारी जो डॉक्टर रजनी ने हमें दी है इसका लाभ पूरी तरह से उठाएंगे, और बच्चों में, अपने बच्चों में अगर मोटापा नहीं है तो उसको आप बचा सकते हैं, और अगर है तो उसको कैसे मैनेज करना है उस बारे में आई एम श्योर कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। सो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो सीरीज जो वर्ल्ड ओबेसिटी डे के लिए बनाई जा रही थी ये यहाँ पे खत्म होती है, मगर ये सिर्फ ये सीरीज खत्म होती है। हम आपसे फिर नई जानकारी लेकर के और नई चीजें लेकर के मोटापे के बारे में और बीमारियों के बारे में फिर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। डॉक्टर रजनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।